Sales was a kind of taboo. So I actually ran out to Bombay. बहुत रगड़ा खाया, बहुत ट्रेनिंग हुई, बहुत जिल्लतें सही, बहुत रिजेक्शन सहे, बहुत सारा पैसा कमाया. एक बात समझ में आ गई, sales is my religion since then. It is said that 88% of sales calls never start. क्यों? आप बात करना चालू करते हो और सामने वाला आपको सेल्स ही समझता है, आपको चिपकू समझता है और आपको भगा देता है. My first sale, my first customer reinforced the fact that I am born to be a salesperson. No one in the world can motivate you. You can only motivate yourself. एक Big Four consulting company में काम करने के बावजूद भी I am still a salesman and I'm still doing a podcast on selling. Sales is a way of life. पुराने जमाने में जब बार्टर होता था तो भी सेल होता था. तो सेल्स तो पुरातन काल से चल रहा है. जब से दो मनुष्य ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सेल्स है. और यकीन मानो कि जब तक दो मनुष्य ट्रांजैक्शन करेंगे रोबोट कैन नॉट रिप्लेस ए सेल्समैन. सेल्स वाला जो बंदा है वो हमेशा लगेगा दुनिया को. देखिए एक सेल्समैन जो बहुत चपड़ बात करता है ना, बहुत टॉकेटिव है, वो सेल्समैन है ही नहीं. मनी माइंडसेट बहुत है सेल्स में कि पैसा कमाना है, सेल्स में आओ. पहले तो मैं आपकी ये ब्लिंकिट फिनोमेना को बस्ट कर, आपका कैरियर भी इंस्टेंट नहीं बनेगा. राइट, ये सारे जेंजियों को जाके बता दो आपने ढंग से सही कोच के अंदर सही ट्रेनिंग ली. सेल्स में आप 12वीं पास हो, आप 2 साल के अंदर एक एक्सीलेंस के चेयर पे बैठ पाओ और आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो ऐसा कोई तोप नहीं. सेल्स में रहना है. मोर कॉल्स इज इक्वल टू मोर सेल्स. मैं आपको छाती ठोक के बोलता हूँ, मेरे साथ जितने डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे वो सब मुझसे ईर्ष्या करते हैं और उन सब से मैं तरक्की में ज्यादा हूँ. नाम, शोहरत, पैसा मैंने उनसे ज्यादा कमाया है. आप डेकॉइट हो, शूटर हो, मर्डरर हो, आपको सेल्स आना चाहिए. Hello, welcome to Sales Nuggets, and today we have with us Sanjay Singh, a sales coach, a TEDx speaker, a blogger, a Rotarian, and so many more things which we will kind of know you more during this podcast. So today we are going to talk about your career in sales and how anyone or how the Gen Zs can build their career in sales. And we will try to break certain notions with Gen Zs because they believe that sales is like बहुत काम करना पड़ता है. Definitely there's a lot of money in it, but it's a monotonous job. You need to be a very talkative and an outgoing person, and it's like you hit reality too before because you have to knock doors, you have to go on field. So we'll try to understand what sales is and how your journey has been in sales from being a salesperson to now being a sales coach. So to know you better, I want to know more about your childhood. How was your childhood? Where are you from? And how things were back then at home. All right, thank you very much, and a big shout out to all your followers. You know, I was born in the city of Rourkela in Odisha, and this was way back in 1965. Were you born then? No, you're not A born. 98 born, yeah. All right. So, yeah, like any other normal child, it was very normal. I was born in a family. My father was a metallurgist. He was in a steel plant, in Rourkela Steel Plant, and grew up to be the managing director of Rourkela Steel Plant. So I grew up in a pretty normal middle class family, with education being the core focus. And my sales career started when I was in class 11. Okay. Yeah. So coming from a father who is a metallurgist and family who is working around steel plants, a lot of times we say sales is something which is for businessmen. Like a lot of Sindhis, a lot of Marwaris, they're very good at sales. It's a very common notion. बहुत लोग बात करते रहते हैं कि business वाले sales बहुत अच्छे से करते हैं. And this is two communities, उनका नाम बहुत उठता है. You coming from Rourkela, Orissa, parents in the steel plant, kabhi in your childhood your father told you about what he's selling or what his product is? Yeah, any idea, any first encounter with the thought of sales back in Rourkela? Actually, no. I mean, sales was a kind of taboo. And I don't think anyone ever spoke about sales as a career or growing up to become a salesperson. In fact, I always wanted to work and earn my own money. And my dad was the managing director of Rourkela Steel Plant.
and in a small city, everyone knows the MD's son. So Okay. there was no work that I could do in Rourkela because wherever you go, it's like red carpet, MD's son. So I actually ran out to Bombay to work, take my first work with Eureka Forbes in Bombay. I saw an ad in Times of India, ran to Bombay, ran as in ran, okay, and gave interview, got selected. I was in the first batch of 16 people who started door to door selling in India. Okay. It was after 2 nights that I called my father and said, "Hey, I'm in Bombay and I'm doing this work." He came all the way, counseled me, and said, "Okay, you want to work, work, but remember, studies is important." All right. So I got my first baptism in sales in Eureka Forbes, worked there for 14 months, made a lot of money, understood sales, and ever since there's no looking back. Sales is my religion since then. All right. And you know, Saloni, ever since I did that small stint, Eureka Forbes में जो काम किया ना मैंने, बहुत रगड़ा खाया, बहुत ट्रेनिंग हुई, बहुत जिल्लतें सही, बहुत रिजेक्शन सहे, बहुत सारा पैसा कमाया. एक बात समझ में आ गई कि सेल्स ही जिंदगी है. एंड वंस आई लर्न सेल्स, देन आई थिंक आई कैन डू एवरीथिंग एल्स. To cut the long story short, I came back, did my engineering, did my MBA, went abroad, did my MBA, everything. But still, I think, who am I? I'm a salesman. So you got that idea of being a salesman जब आप यूरेका फोर्ब्स में आपने काम किया. Kind of coming a bit back on your career line. Like now Gen Zs are in 10th standard. Things have become super competitive. स्कूल लेवल से ही बच्चे एक रेस में आ जाते हैं, मुझे टॉप करना है. पेरेंट्स भी सोचते हैं इनको टॉप कराओ. 95%. टुडे पीपल आर गेटिंग 99%. इमेजिन ओनली डिफरेंस ऑफ 6 marks from getting 100%. And in 12th they are doing their JEE's needs. When you were in your 10th standard, when you were in your 12th standard, did you had that ideation that you want to go into sales? Not at all. I mean, 10th, you were busy. You know, I was in the age of ICSE. So you were busy in getting a grade in ICSE. Then you come to 12th. No, not at all. It was engineering, it was education. But yes, that stint, वो जो मैंने 1.5 साल काम किया ना 11th में, that opened me to the external world. So I strongly advise youngsters that आप कुछ काम करो. आप 10वीं के बाद जब छुट्टी मिलती है, 11वीं में मोर और लेस थोड़ा चिल होता है, तो डोंट गो फॉर सुपरफिशियल वाइब्स इन लाइफ. कुछ काम करो, क्योंकि जब आप हैंड्स ऑन करोगे तो आपको you know you will understand what goes with you and what doesn't go with you. एक क्लिक होता है ना, एक्सप्लोर करो, डिस्कवर करो, क्योंकि सच्चाई तो बन गई है, आपको डिस्कवर करना है कि आपके लिए सच क्या है. राइट? तो मैंने अपनी सच्चाई ढूंढी जब मैं यूरेका फोर्ब्स में काम किया. कहीं पढ़ाई में कमी नहीं की. आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम द बेस्ट ऑफ कॉलेज फ्रॉम बेट्स. आई डिड माई MBA फ्रॉम द बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज. पढ़ाई में कहीं कमी नहीं की. माँ बाप जो चाहते थे, घर जो चाहता था, परिवार, सोसाइटी, fulfilled everything. You know, you have to understand that sales is not a degree. Okay. Sales is a skill. Sales is a way of life. Sales जिंदगी जीने का एक तरीका है. आप डिग्री कुछ भी ले लो, आप इंजीनियरिंग ले लो, डॉक्टरी ले लो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, लॉयर बन जाओ. डिग्री आपको एक नॉलेज डोमेन देती है. You know, but sales आपको जिंदगी का तरीका सिखाता है. You can be a doctor, Yes. and still not be a successful doctor if you don't know selling. All right. You can be a chartered accountant and still not be a successful chartered accountant. Have you seen chartered accountants who have the degree but are not very good? As in not Very doing few. very good business? Very few. I'll show you a lot of doctors, a lot of chartered accountants who have got the degree, that means they're good. They're good, yeah. But they are not earning as much money, as much fame, as much name as their counterparts. Isn't it true? Yeah. So like sales is something which is attached to every career. हर career में, हर profession में एक sales का एक role रहता है. So as you said, 10, 12th में तो आपको thought नहीं आया. You have done your engineering. And 12th में नहीं, 11th में काम करने के काम बाद I करने के knew बाद you knew for sure. you want to get into sales. जब 11th में आपको एक ideation आ गया था कि you know you want to do sales,
Did post 12th, after now you are more experienced, what would you suggest as Gen Zs who want to enter sales? What career path should they choose? Should they do engineering and MBA, or what undergraduate should they do, and what postgraduate should they do? Like, what path did you choose for yourself? See, I did my engineering, but I strongly recommend that the degree that you do Correct. is immaterial. You can do commerce, you can do arts, you can do science. I personally feel that if you do science, then you're more analytical. But sales is a combination of science and arts. So if you have done engineering or science, you are very analytical, but then your storytelling may not be as good. For that, Right. you need ads. Yeah. And but if you have done arts, your storytelling can be very good. Your conversations can be very engaging, but then you may not be analytical. So you need both, because sales is a skill. Sales is a way of life where you need to have science and arts also. Okay. You cannot survive if you don't have science. You will not excel if you don't have arts, Mm-hmm. right? So to survive in sales, you got to be analytical. Right. And to excel in sales, you got to combine your analytics with the art of selling. So you Correct. need both. Sales is a diverse field. You cannot say कि only science वाले बंदे कर सकते हैं या commerce वाले बंदे कर सकते हैं. Everyone who have studied whatever background and degree is just a knowledge part. Anyone can get into sales. Yes, anyone can get into sales, but they must discover this world by diving into the water. Okay. Don't try to learn swimming by reading about swimming. So don't try to learn selling by listening to YouTube videos or podcasts like this. Go thrash it out on the field, implement it. Yeah. do some assignments, and no one can tell you what is sales. Okay. You have to experience it. Like they say कि प्यार महसूस होती है. Right. कोई आपको प्यार के बारे बखान नहीं कर सकता ना, आपको वो महसूस होता You है. have to experience it. You have to experience it, right? You have to be a child to know how a mother loves, and you have to be a mother to know how a mother loves better. True. Correct? So that's an Yes. experience. तो आप जब तक सेल्स करोगे नहीं, एक्सपीरियंस लो, असाइनमेंट्स करो, छोटे छोटे असाइनमेंट्स करो 11वीं में 12वीं में, समझो. इट्स नॉट अबाउट मनी. लॉट ऑफ पीपल कम टू सेल्स बिकॉज दे थिंक कि थोड़ा सा पैसा कमा लो, मेक ए फास्ट बक, जिंदगी भर ये तो करना नहीं है, बट थोड़े से पॉकेट खर्च के लिए पैसे कमा लो, इसलिए सेल्स में आ जाते हैं. Right. So if the why is wrong, then the how and the what will definitely be wrong. So the why behind why you're joining sales is, don't join sales because you want to earn money or you want to make a fast buck or just for a side hustle. Come to sales because you want to consciously tell to yourself, is this my calling? Can I make a career here? Is this good for me? If not good, then why is it bad for me? Why should I reject this as a career? तब आपको थोड़ी सी वो महसूस होगा कि what is sales and why it is meant for you. As you said, understand your calling, and I think Gen Zs में जो है delusions, there are a lot of delusions, and there are many memes on it that how delusional we are right now. When you said understand your calling, when did you realize, जब आपका MBA हो गया था, engineering हो गया था, when did you realize that okay, sales is my calling? What was your why? I'll explain a very interesting anecdote. I was in America Force and I was getting trained. So we were supposed to sell vacuum cleaners. So I used to knock doors, go to customers. They never used to talk to me, never used to listen to me. I used to come back dejected in the evening and tell my boss, my trainer, his name was Solomon. So Solomon used to ask me, what happened, Sanjay? I said, nothing happened. As usual, I knocked doors and people Right. just banged doors on my face. I said, okay, keep on trying. One day I came, Solomon asked me the same question, what happened? I said, two people welcomed me inside the house, but the moment I opened my mouth, they said, no, they're not interested. Mm-hmm. And Solomon said, wow. His excitement was, I said, what happened? Nothing great. I mean, it's the same thing. Every day I'm doing the same thing. He said, no, today you have earned a no from your client. And that's your first exam pass. You have passed the first exam in sale. Welcome to sales. I really didn't understand what he meant. Yeah. But later on, I understood
that getting a no from the customer is also an achievement. And then I had realized that the only skill जो आपको चाहिए, आप एक सेल्स कन्वर्सेशन क्रिएट कर पाते हो क्या? जब आप किसी ग्राहक को मिलते हो, आर यू एबल टू क्रिएट अ पॉजिटिव सेल्स कन्वर्सेशन? Okay. यू नो, जगजीत सिंह की एक गजल है ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो कमबख्त बात निकलती ही नहीं अक्सर. You know, it is said that 88% of sales calls never start. Okay. They are non-starters. क्यों? क्योंकि सेल्स कन्वर्सेशन क्रिएट नहीं होती. आप बात करना चालू करते हो और सामने वाला आपको सेल्स ही समझता है, आपको चिपकू समझता है और आपको भगा देता है या आपसे दूर हाँ, भागता है. नहीं चाहिए ये प्रोडक्ट. नहीं चाहिए, सेल्समैन ही नहीं चाहिए. प्रोडक्ट तो बात की बात है, प्रोडक्ट के बारे में सुनता भी नहीं है, राइट? So that day I understood that creating a sales conversation is so important, and that's where I got the first light of sales in my mind, Okay. right? And ever since then, one thing led to another, and then it took me around 6 months to realize that I can actually control the actions of my customer through my karmas. Okay. And that gave me a sense of power that I can make the customer behave the way I want. You know, that's being a kind of God on earth where you're trying to hypnotize. You know, if you can do something to someone Correct. through your karmas, it's like hypnosis, right? And you learned a new thing, went and tried it next day, learned another, tried next day. It's magical. It's fun. So when you told आप डोर नॉक्स कर रहे थे, आप घर के अंदर जा रहे थे, सोफा पे बैठ रहे थे, मे बी कोई लोगों ने आपको पानी भी पूछा होगा, कोई लोगों ने कुछ भी नहीं पूछा होगा, रास्ते से भगा दिया होगा. एंड व्हाट वाज दैट फर्स्ट सेलिंग एक्सपीरियंस जब पहला वैक्यूम क्लीनर बिका एंड उसके बाद डिड थिंग्स चेंज फॉर यू, डिड द नंबर्स गो अप एंड व्हाट इज द स्टोरी? सो व्हाट वाज योर फर्स्ट सेलिंग एक्सपीरियंस? So my first customer was a guy called Abhinav Kulkarni. ओके. Okay, I hope he's alive somewhere. So he used to work in Forbes and Campbell in Mumbai. I remember him very vividly. And I gave a normal demo the way I used to do every time. I was not expecting any sale. And he came forward and said that, where do I sign? Okay. I want to buy this vacuum cleaner. I had not made a close. I had not showed any aggression. I just gave an honest demo, right? And he said that, yeah, I want to buy it. I was thinking, why is he wanting to buy it? Because why others didn't buy it? And he came up and said that, Sanjay, your demo was great, and you will make a great salesperson. You have done a wonderful job, and I want to buy this machine from you. And I asked him that, so why do you want to buy this machine? And he told me that, Sanjay, I'm the general manager sales of Forbes and Campbell, and I see a wonderful salesperson in you, and you have done a great demo. You have all the elements of a great salesperson, and I want to be your first customer. Okay. How what was the price of that vacuum cleaner? 2,740. Okay. And my salary was 2,750. So exactly you made your salary from the first sale. Yeah, no, my commission was 700 rupees Okay. on each vacuum cleaner. So that's how I made my first sales. What I'm trying to say is, a salesperson does never sell. Okay. You know, selling is not about selling. A salesperson is not supposed to sell. The moment you sell, you push, you're sleazy, you're pushy. No, you become a chipko. Okay. So a salesperson helps the customer buy. Okay, we don't sell. So you create that need in him. Did you create the need for vacuum? Creating means manipulating. All right? All right. So you don't create a need. You just discover a need which already exists. And that's the help. You help the customer discover his needs. It exists. Okay. You have to just find it. Yeah. You're a counsel, you know, just like a lawyer is a counsel to his client. So a salesperson is a counsel. He helps the customer discover his own needs. Many a times he helps the customer prioritize his needs.
in a way that he ends up buying the product from you. Okay. But there is no manipulation. There's If no you are a manipulation. manipulative salesperson, then you're a disgrace to the cult of So you sales. cannot be pushy. You cannot force people to buy a product. If you show me a salesperson who's pushy, I don't mind shooting him to death and going behind bars, because these are the people who are जो बदनुमा दाग हैं सेल्स की जात पे. Mm-hmm. So no, definitely sales is not about pushing. It's about prodding. It's about probing. It's about asking. It's about understanding. It's about discovering. Okay. Right? Nice. It's about counseling. It's definitely not about selling. Selling. And how many vacuum cleaners did you sell by the end of your 11 standard job? At the end, when I left my company, I had sold 721 vacuum cleaners. So the manager was correct. You seeing yourself as a good salesperson in future. My first sale, my first customer reinforced the fact that I am born to be a salesperson. I was always thinking that, yeah, this is my calling, this is my job, this is what I want to do. But when I made my first sale and the guy was a senior general manager sales, he said, I see the spark in you. I thought that God was speaking through him because he had no vested interest. He didn't offer me a job. He didn't ask me to come and join him. He just said that I see a salesman in you. A lot of times you have to understand your own calling. कहाँ से आ रही है? Maybe कौन बोल रहा है? The experience. You have to understand it. And that's a reinforcement, right? That's a reinforcement. Calling तो अंदर से ही आती है. No one in the world can motivate you. You can only motivate yourself. Calling अंदर से आती है. आप you have to keep your ears open. What's next after Eureka? Like you did your MBA in, by the way, Marketing. So MBA in marketing. What was after that? What did you do? What was your first job like? So after Eureka Falls, I did my parents became heavy on me. पढ़ाई करना है, engineer बनना है, right? So I gave my engineering, joined BITS, Okay. did my engineering in electronics, and then worked in India for a year in Hindustan Computers, HCL. It had an offshoot called Hindustan Office Products Limited. I worked there for a year in Calcutta. By then, I got my GMAT, so I went abroad, did my MBA from Ohio in USA. After doing my MBA, I worked for McKinsey Consulting for 12 years. Okay. 8 years in US, 2 years in UK, Africa. So I have done my engineering from a good college. I have done my MBA from a good college. I've been in consulting into And the you Big too Four. good for everyone to do an engineering from BITS to go to US for an MBA. What about people who are doing engineering from local colleges and MBA from local colleges? So what important क्या है सलोनी, ये समझना कि एक बिग फोर कंसल्टिंग कंपनी में काम करने के बावजूद भी हाँ. I am still a salesman and I'm still doing a podcast on selling. I'm not doing a podcast on management consulting. Yeah. Yeah, I'm fully equipped, authorized to do a podcast on management consulting. True. But I think that sales is a super riding skill. If you understand sales, you can be anyone. You can be a consultant, you can be a doctor, engineer, anyone. So sales is not a degree. Guys, stop looking at sales as a degree. Stop looking at sales as an education. Sales is a way of life. I mean, breathing, is it a degree for you? No. Breathing correctly, is it a degree for you? No. No. Eating correctly, what is eating correctly? Eating It's just a healthy? lifestyle thing. Yeah. Eating healthy? So Living the sales life is a way of life. सो आपने अपने MBA के बारे में बताया, इंजीनियरिंग के बारे में बताया, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताया, वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 12 years. इज सेल्स यूनिवर्सल? लाइक आज मैं नागपुर में काम करती हूँ या मैं कहीं उड़ीसा में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ या आउट ऑफ इंडिया भी जाऊँ, अ लॉट ऑफ जेनजीज अभी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए. इज योर सेल्स अ यूनिवर्सल थिंग कि वो डेमोग्राफी से चेंज हो जाता है? देखो, सेल्स तो अगर दो मनुष्य है और दो मनुष्यों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है तो सेल्स हो रही है.
पुराने जमाने में जब बार्टर होता था तो भी सेल होता था, आदान प्रदान में पैसे नहीं जाते थे, वही एक मुट्ठी गेहूं देता था, वो कुछ सेवा करता था। करेक्ट। तो सेल्स तो पुरातन काल से चल रहा है, जब से दो मनुष्य ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सेल्स है। ओके। और यकीन मानो कि जब तक दो मनुष्य ट्रांजैक्शन करेंगे, रोबोट कैन नॉट रिप्लेस ए सेल्समैन। ओके। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो लोग भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो उसी चीज को दो लोग दो तरीके से देखते हैं। ठीक है। और सेल्समैन का काम ही है कि उस चीज को सही तरीके से दिखाना। ओके। तो उस कस्टमर को ना, ग्राहक को हमेशा सेल्समैन लगेगा किसी चीज को सही परिप्रेक्ष्य में दिखाने के लिए। तो एआई इसमें कुछ नहीं कर सकता? उन चीजों में यही रिप्लेस कर सकता है जहां पे रिपीटिशन है, जहां क्लेरिकल है। करेक्ट। जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में बताना, ये शायद रोबोट अच्छा कर सकता है, राइट? फीचर्स बता देगा। फीचर्स बताना, बेनिफिट्स बताना, ये कर सकता है। ओके। लेकिन ग्राहक को समझना और ग्राहक के समझ के करेक्ट फीचर बताना, कि मेरे प्रोडक्ट में 5 फीचर है सपोज, उन 5 में से आपको एज ए ग्राहक एक ही फीचर एक्साइट करती है, क्योंकि आपको जरूरत उसी एक ही फीचर की है, राइट? मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रियल एस्टेट। एक डॉक्टर है जो बहुत सारे पैसे कमाता, कैश में कमाता, शायद इनकम टैक्स से बचाता। अब उसकी नीड है कि मैं अपनी कैश लिक्विडिटी को किसी सेफ जगह में लॉक करूं, तो लैंड बैंक में लॉक करना बड़ा आसान तरीका है उसके लिए। सही है। अब उसकी नीड क्या है? अनअकाउंटेड मनी को लॉक करना। ओके। अब एक रियल एस्टेट का सेल्समैन अगर जाता है एक डॉक्टर के पास और वो अपनी लैंड की प्रॉपर्टी, लैंड का एप्रिसिएशन, लैंड की लोकेशन वगैरह वगैरह उसको बताता है, या उसके बदले में कोई रोबोट उस लैंड की सारी बेनिफिट्स बताता है, तो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उस डॉक्टर की नीड एप्रिसिएशन नहीं है, उस डॉक्टर की नीड है सेफ लॉकिंग ऑफ हिज लिक्विडिटी। ओके। तो उसे एक रिलायबल लैंड बैंक चाहिए जहां वो पैसा ब्लॉक कर ले और जब जरूरत पड़े तो लिक्विडेट कर ले, और इतने समय में अप्रिशिएट ना हो। यू गेट द पॉइंट? तो सेल्स वाला जो बंदा है वो हमेशा लगेगा दुनिया को, क्योंकि दो लोग, आपने जो सवाल पूछा कि उड़ीसा, इंडिया, टिम्बकटू, झुमरी, तिलैया, हर जगह, यूएसए, जहां दो लोग हैं वहां सेल्स है, वहां सेल्स है। सामान बिक रहा कि नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। दो लोग, दो लॉयर, दो डॉक्टर, अ डॉक्टर टॉकिंग टू अ पेशेंट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टॉकिंग टू अ बैंकर टॉकिंग टू एन एक्सपोर्टर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्बिनेशन, दो लोग बात कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं विचारों का, ट्रांजैक्शन हो रही है, सेल्स हो रहा है। ओके। सो जब हम एक सेल्स, यू आर अ सेल्स कोच, आप बहुत लोगों को भी कोचिंग देते होगे, एक सेल्स पर्सन में क्या होना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी स्किल सेट है, या ऐसे कौन से क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक सेल्स पर्सन में होना चाहिए? तो अगर ये चीज़ें हैं तो आप सेल्स कर सकते हो। व्हाट आर दोस थिंग्स? देखिए, एक सेल्समैन जो बहुत चपड़ 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 बात करता है ना, बहुत टॉकेटिव है, वो सेल्समैन नहीं है। ओके। वो सेल्समैन है ही नहीं। टॉकिंग लेस, लिसनिंग वेरी एग्रेसिवली, ये सेल्समैन है, जो हर छोटी चीज को सुन लेता है, देख लेता है, महसूस कर लेता है। यू नो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक सेल्समैन सिर्फ कान से नहीं सुनता, आंख से सुनता है, कान से सुनता है, मुंह से सुनता है। यानी आंख से कैसे सुनेगा? वो चहलकदमी देखता है, बॉडी लैंग्वेज देखता है और सुनता है। यू नो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मेरे कान में जा रही है, मेरे आंख में नहीं जा रही है। राइट। तो अगर आप वैसा ऑब्जर्विंग हो, आप, ये अच्छा गुण है आपका सेल्समैन का। आप चपड़ चपड़ बातें करते हो, ये अच्छा गुण नहीं है, राइट? आप मददगार हो, आपके दिल में सेवा की भावना है, आप चाहते हो कि आपके ग्राहकों को आपसे फायदा मिले, आपके दिल में एक सर्विस का इमोशन है, एंड यू वांट कि इस दुनिया में हर आदमी को आप दो, क्या दो? सेवा दो, मदद दो। आप सेल्स जात के हो। ओके।
तो देखिए ये मिथ्या है। लोग बोलते हैं कि बहुत चपड़ चपड़ बातें करता है सेल्समैन है, नहीं, हाँ ये भी मिथ्या है। लोग बोलते हैं कि सेल्समैन बहुत सेल्फिश होता है, हमेशा कुछ बेचने की Right. कोशिश करता, हमेशा पैसा मांगता है। नो, सेल्समैन वो जो सेवा की भावना, वो समवन इज ट्राइंग टू हेल्प द कस्टमर बाय। ओके ऑलराइट, आप ऑब्जर्वेंट हो, आपकी एनालिटिकल स्किल बहुत स्ट्रांग है, जो चीज सामने वाला बोल रहा है वो तो आप समझ ही ले रहे हो, बट जो नहीं बोल रहा है वो भी आप समझ ले रहे हो। तो उसको चैलेंज क्या आ रहा है सामने वाले को, क्यों नहीं? पेन, रिस्क, चैलेंज, नीड, चार हाँ। चीजें हैं। अगले को या तो कोई ना कोई पेन सता रही है, कोई पीड़ा सता रही है, अगले की लाइफ में कोई रिस्क है, कोई चैलेंज है, या कोई नीड है। अगर इन चारों चीजों को समझना है तो आप कैसे समझेंगे, क्योंकि अगला तो बताएगा नहीं। Right. तो आपके अंदर सवाल पूछने की कला होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग स्किल्स। तो एक सेल्समैन कौन है जो बहुत इंक्विजिटिव सवाल पूछता है। हाँ लोग सोचते हैं कि सेल्समैन वो है जिसको सारे जवाब मालूम है, कतई नहीं। ओके सेल्समैन वो है जिसको हर तरह के सवाल पूछने की जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, कौतूहल है, राइट। यू नो, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, इफ यू टेल अ स्मॉल चाइल्ड कि हम आज आइसक्रीम खाने जाएंगे, तो चाइल्ड डजंट से वाह, नो, द चाइल्ड विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। लाइक Yeah. व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट द चाइल्ड विल आस्क? क्या बनाया है, क्या है, और सिंपल कब जाएंगे कब खाने, जाएंगे, कहाँ जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे कि नहीं, कैसे जाएंगे, राइट। आइसक्रीम के पहले क्या खिलाओगे, बाद में क्या खिलाओगे। दैट्स द सेल्स पर्सन। तो हर एक के अंदर सेल्स की जात होती है जब पैदा होता है। जब धीरे धीरे बढ़ते हैं, हम सियाने हो जाते हैं, मेच्योर्ड हो जाते हैं, और हम वो कौतूहल को भूल जाते हैं, वो क्यूरियोसिटी भूल जाते हैं। तो सवाल पूछने की कला भी आपको एक अच्छा सेल्समैन बनाए, सेल्समैन बना। राइट। और मैं ये समझता हूं कि आपके अंदर अगर एक भूख है, भूख किस चीज का? तीन चीज का, नाम, शोहरत और पैसा। नाम, शोहरत और पैसा, नेम, फेम एंड मनी। नेम फेम। If you are hungry for these three things in life, I don't think there is any other option other than sales, because sales के थ्रू आप ये तीनों चीज अपने टर्म्स पे कमा सकते हो, ओके और अपने स्पीड से कमा सकते हो, राइट। तो आपने पूछा कि एक सेल्समैन कौन है, What या are the उसके अंदर qualities? क्या हाँ। गुण होने चाहिए। तो मुझे लगता है ये 5 गुण सेल्समैन में होना चाहिए। ये इस बात का सिम्टम है कि अगला सेल्समैन है। सो इफ यूर अ लिसनर, आप सर्विस में हैं एंड आपका माइंडसेट एक सर्विस वाला है, आप अच्छे ऑब्जर्वेंट है, आप क्यूरियस है, आपकी क्वेश्चनिंग स्किल्स अच्छी है, सो यू मस्ट एंटर द डोमेन ऑफ सेल्स। या माइंडसेट सर्विस वाला मतलब हेल्प करने वाला। हेल्प करने वाले, फिर हेल्पिंग नेचर पर्सन है। यस। ओके हमने बहुत बार देखा है कि बहुत लोग सेल्स में आ जाते हैं, इनको आना होता है नहीं, अब क्या करें, सब एक मनी माइंडसेट बहुत है सेल्स में कि पैसा कमाना है, सेल्स में आओ। सेल्स में इंसेंटिव्स है, सेल्स में आप एक चीज बेचोगे तो उसमें आपकी कमीशन है। तो सेल्स का रियल वर्ल्ड क्या है, व्हाट इज द रियल वर्ल्ड, कैसा है, एंड क्या लोगों को एक सेकंड चॉइस रखनी चाहिए सेल्स में आने के लिए, कि एक्चुअल लोगों को, अगर जैसे हमने कहा नेम, फेम एंड मनी, जिसके लिए बहुत लोग, मोस्टली हर कोई काम करता है, तो क्या ये फर्स्ट चॉइस रहनी चाहिए कि सेकंड चॉइस रहनी चाहिए? देखिए, कैरियर बनाना है तो फर्स्ट चॉइस ही रखना पड़ेगा, बट उस समय जब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका फर्स्ट चॉइस क्या होगा, हाँ आई थिंक दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट फेज। एक बार आपको समझ में आ गया कि यही आपका कैरियर है, तब तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रबल, राइट। तो वो जो फेज है जब आप डिस्कवर कर रहे हो कि आपकी कैरियर क्या होनी चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्राई इट। मेरे कहने से मत आओ, किसी के कहने से मत आओ, वो आवाज आपके अंदर आएगी कि आपने ये करना चाहिए, आप इस काम को कर सकते हो। जैसा आपने बताया कि अधिकतर सेल्समैन बाय एक्सीडेंट आता है, करेक्ट, या ठेल दिया जाता है, ही इज पुश्ड इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ सेलिंग। ओके, आई एग्री। देखिए, ये प्रोफेशन है जहां हर आदमी वेलकम है, ओके, पर हर आदमी टिकता नहीं है। हाँ टिकता वही है जो सेल्स समझ लेता है, करेक्ट। तो ये प्रोफेशन बदनाम है कि किसी को भी ये नौकरी मिल जाती है,
हाँ बट आप ये समझिए कि हर आदमी यहाँ आता है, ओनली 12% ऑफ पीपल हु कम इनटू सेल्स सर्वाइव इन सेल्स. व्हाट इज देन द सर्वाइवल टेक्निक? अगर सर्वाइव करना है तो क्या करें? आपको सीखना पड़ेगा. देखिए, फेल्ड सेल्समैन को लोग जानते हैं क्योंकि ये स्टीरियोटाइप हो गई है. बट देर आर फेल्ड डॉक्टर्स, देर आर फेल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. इन एवरी प्रोफेशन देर आर यू कैन फेलियर्स. फेल. या यू कैन फेल. तो किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए आपको उस प्रोफेशन के तरीके समझने हैं. यू नो, देयर इज ए साइंस ऑफ सेलिंग. ओके. If the science of selling is in place, then the art of selling supports it. तो आपको सबसे पहले तो साइंस ऑफ सेलिंग सीखना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे किसको माल बेचना है? कंघी बेचना है तो गंजे के पीछे नहीं आना. ही राइट. किसको माल बेचना है, यहाँ से कहानी चालू होती है. अब माल बेचने के लिए अपना प्रस्ताव रखना कैसे है? आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, आप सीधा जाके तो नहीं बोलते आई लव यू. करेक्ट. There's a way to propose. There's way to. तो आप अपना प्रस्ताव कैसे रखते हो, राइट? अब प्रस्ताव रखने के बाद अगला सवाल पूछता है, तो जब अगला सवाल पूछता है, ऑब्जेक्शन रेज करता है, आप उसको हैंडल कैसे करते हो? अब हैंडल करने के बाद अगला बोलता है कि ठीक है, ऑफर क्या है, तो आप नेगोशिएशन कैसे करते हो? अब नेगोशिएशन करने के बाद ऑर्डर क्लोज हो गई. हाँ. तो ऑर्डर क्लोज होने के बाद आप उससे कनेक्टेड कैसे रहते हो? आप उसको जिंदगी भर कैसे कनेक्शन में रखते हो? ये सब चीज एक साइंस है. ओके. और इस साइंस को समझ लिया जिसने, वो सेल्स में टिक गया. तो अभी आप, मैं आपसे एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ कि लोग आपसे सवाल पूछेंगे, राइट. तो सवालों का जवाब कैसे देना? मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दो. ओके. वही सवाल आप मुझसे पूछना. मैं इसी पॉडकास्ट में इसी 1 मिनट में आपको एक टेक्निक सिखा देता हूँ आपके फॉलोअर्स को समझने के लिए कि ये सीखना कितना आसान है. ओके. मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है? यस. सलोनी, आप सेल से इतना घबराते क्यों हो? क्योंकि बहुत रिजेक्शन, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत रिजेक्शंस होंगे. हर कोई ना 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 बोलेगा. सो दैट इज द लाइक द स्केयर. ओके. तो मैंने एक सवाल पूछा, आपने एक जवाब दिया. करेक्ट. अब यही सवाल आप मुझसे पूछिए. आप बोलिए कि संजय, आप सेल से इतना मोहब्बत क्यों करते हो? क्योंकि मैं घबराता तो नहीं हूँ. ओके. राइट? यस. संजय सर, आप सेल से इतना मोहब्बत क्यों करते हो? देखिए, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मानते हो कि मैं मोहब्बत करता हूँ. बट चूंकि आपने ये सवाल पूछा है, तो क्या आपके अंदर सेल्स को लेके कोई नफरत है? नफरत नहीं है, डर है, जो आपने पहले भी बोला. ओके. तो किस प्रकार का डर है? जो मैंने बताया कि जाओ, नहीं हुआ तो फिर कैसे कंटिन्यू करना, एंड बार बार कोई पूछे. आपको एक बहुत टारगेटेड लाइफ जीनी पड़ती है कि मुझे बेचना ही है. बाकी प्रोफेशंस में कैसे, हाँ ठीक है मैंने आज काम कर लिया. बाकी प्रोफेशंस में चीजें सब्जेक्टिव है. सेल्स में चीजें बहुत एनालिटिकल है, नंबर ओरिएंटेड है. मैंने 5 बेचे, मैंने 10 बेचे, मैंने 15 बेचे, और जिसने 5 बेचे उसने भी कुछ अचीव ही किया होगा. 5 बेचे में मेहनत लगी होगी, बट हमेशा अप्रिसिएशन ज्यादा नंबर वाले को मिलती है. ओके. तो वो एक रिजेक्शन का एक डर बैठ जाता है इंसान में. मैंने 15 नहीं बेचे तो ओके, मैं सेल्स नहीं कर सकता. 5 इज नॉट अ गुड नंबर. वो नंबर गेम है. ओके, यहाँ रोकता हूँ. हाँ. क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इसको फिर बात करेंगे. यहाँ रोकता हूँ. राइट. बात हुई थी कि एक सवाल का जवाब कैसे देना है. हाँ. आपने मुझे पूछा, मैंने आपको पूछा कि आप नफरत क्यों करते हो, आपने मुझे कारण बताया. करेक्ट. आपने मुझे पूछा आप मोहब्बत क्यों करते हो, मैंने कारण नहीं बताया. हाँ. अभी मैंने आपके कारण आपको- की बारी. मैंने आपको सवाल फिर पूछा से क्वेश्चन क्या है? और आपने मुझे अपने प्रॉब्लम की कारण बताई. कन्वर्सेशन क्रिएट हुआ. राइट. राइट. और ज्यादा बात कौन कर रहा था? द अदर पर्सन. यस. तो ये आप समझ गए कि हाउ टू आंसर ए क्वेश्चन. करेक्ट. द राइट वे टू आंसर ए क्वेश्चन इज बाय आस्किंग अ Another question or relevant question, never by giving an answer even if you know the answer. even if you know the answer. करेक्ट. तो देखिए, सिंपल है. अब मैं आपको और एक सवाल पूछता हूँ, अब आप ये टेक्निक फॉलो करो. Okay. सलोनी, आप चश्मा क्यों पहनते हो? Because there is a deficiency. दिखता नहीं है देखो, आपने दूर फिर का. से जवाब दे दिया. साइंस क्या बोलता है? आपको एक रेलेवेंट सवाल पूछना है. Okay. आप मुझसे पूछो. तो ये रेलेवेंट सवाल बनेगा कैसे? आप How मुझसे to- पूछो. मैं भी चश्मा पहन लेता हूँ, आप मुझे पूछो. आप चश्मा क्यों पहनते सर? तो सलोनी जी, मैं मेरे चश्मा आपने देखा
तो क्या आप चश्मा के व्यापार में हैं? So I have to answer, right? मैं नहीं हूँ, अगर तो मैं नहीं हूँ. अच्छा, तो फिर आप पूछ रहे हैं कि आप चश्मा क्यों पहनते हैं? क्या आपको चश्मा नंबर नया नया लगा है? हाँ, अभी रिसेंट में लगा है, न्यू है. अच्छा, तो कोई डर है आपको चश्मा को लेके? हाँ, कि लॉन्ग टर्म में कुछ मार्क्स आ जाएंगे या दिखेगा कि नहीं अच्छे से. अच्छा अच्छा, तो अभी आपकी शादी हो गई, नहीं, तो शादी को लेके चिंता है? ऐसा जैसी कुछ नहीं है, बट देखिए, कन्वर्सेशन क्रिएट हुआ, हाँ, यू आर टू गुड. कन्वर्सेशन Yes. क्रिएट हुआ, तो ये एक छोटी सी टेक्निक है. ऐसे 50-60 टेक्निक्स हैं, आप सीख लोगे, सेल सीख. कितना टाइम लगा आपको ये टेक्निक सीखने में? आई डोंट थिंक ये 1 मिनट में लर्निंग वाली टेक्निक है, बट हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू मास्टर इट? देखिए, सीखते सीखते ही सीखते हो. मैं हमेशा बोलता हूँ दैट द बेस्ट वे टू लर्न इज टू फेल. ओके. इफ यू लर्न हाउ टू फेल, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सीख जाओ. हाँ. तो आपके अंदर भूख होनी चाहिए कि मैं सेल सीखना चाहता हूँ. चलो जल्दी से सेल्स में जहां जहां फेल होना फेल हो जाओ. आप फेल हो जाओ, क्या होगा? जितनी बार आप फेल होगे उतनी बार आप सीखोगे. ओके. फेल होना ही पड़ेगा, मतलब कोई आप मुझे कोई प्रोफेशन बताइए जिसमें बिना फेल हुए आप सीख लेते. सो फॉर सक्सेस यू हैव टू फेल. आप मुझे बताइए ना, एक I सर्जन don't think- एक हाँ. सर्जन जब सर्जरी करना सीखता है, आपको पता है एक डॉक्टर जो एमडी डॉक्टर 40 साल की उम्र में नर्स से गालियां सुनता है, आपको पता है? नहीं, कभी देखा. ऑपरेशन थिएटर के अंदर, एंड दिस इज टू ऑल द डॉक्टर्स हु हैव जस्ट बिकम सर्जन्स. इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर एक नर्स उनको सिखाती है, ये गलत कर रहे हो तुम, ऐसा करो, ऐसा मत करो. क्योंकि उसे सब्जेक्ट मालूम है, बट उसे प्रैक्टिकल सर्जरी शुरुआत नर्स ही सिखाती है. जो ओटी टेक्नीशियन है वो सिखाता है. फेल होता है वो. आपको क्या लगता है कार्डियोलॉजिस्ट पहले दिन से ही हार्ट छीनना चालू कर देता है? आपको क्या लगता है कमर्शियल पायलट पहले दिन से ही प्लेन उड़ाने लगता है? He has to undergo 180 hours of flying as an assistant before he is asked to put his hand on the throttle. Right? आपको क्या लगता है कि इंजीनियर पहले दिन से ही मशीन बनाने लगता है? नहीं यार. ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां बिना फेल किए हुए आप फ्रंट लाइन में आते हो. ट्रू. राइट? ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें टारगेट नहीं होती है. आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि टारगेट, यस. टारगेटेड लाइफ है. बहुत टारगेट. मुझे आप एक प्रोफेशन बताइए जहां टारगेट नहीं होती. वट एवर, मैं इस पाई थी कि बहुत चीजें हर जगह बहुत सब्जेक्टिव रहती है, बट सेल्स में चीजें सब्जेक्टिव नहीं रहती. तो क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? फॉर बहुत लोगों के लिए बुरी बात है कि एक स्कोप ऑफ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, चीजें आराम से करने का वो टाइम नहीं मिलता, एंड आपको फर्स्ट मंथ से ही वो परफॉर्मेंस देनी पड़ती है. राइट? तो मैं तो इसको समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है. बाकी प्रोफेशन में सब्जेक्टिव है तो लोग चक्की पिसिंग करते करते थक जाते, समय लगाते हैं सक्सेसफुल होने के लिए. सेल्स का प्रोफेशन बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बड़ा टारगेटेड है. तो जिनको पास होना है फटाफट पास होके आगे निकल लेते हैं, और जिनको फेल होना है वो कल फेल होते तो आज ही फेल हो जाए. क्यों जिंदगी वेस्ट करना? तो सब्जेक्टिव लाइफ अच्छी है कि ऑब्जेक्टिव लाइफ अच्छी है? ऑब्जेक्टिव लाइफ है, जिस कैटलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, अब जल्दी आगे जाओगे. हाँ, करेक्ट. जल्दी आगे जाओगे. इसलिए तो सक्सेसफुल सेल्स पर्सन आपको 30-32 साल की उम्र में जिंदगी की हर ऐशो आराम, शानो शौकत महसूस करेंगे, यूज करते हुए दिखेंगे. अभी आपने जो एज का मेंशन किया, क्या सेल्स एक एज ग्रुप से रिलेटेड है? मतलब क्या यंग लोग ही बेटर सेल्स कर सकते हैं, या जब सपोज अगर मैं कोई 40 की हो गई या 42 की हो गई, क्या उसके बाद मैं सेल्स कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, या मुझे ट्रांजिशन करना चाहिए और कोई डेजिग्नेशन है? देखिए, जब आप ये बोलते हैं ना कि सेल्स कर सकती हूँ, तो आप मेरी बेसिक बात को झुठला रही है. सेल्स करना नहीं होता है, सेल्स हो रहा होता है. ओके. सांस लेना नहीं होता है, सांस चल रहा होता है. राइट? जिंदगी जीना होता है बाय डिजाइन, बट नहीं भी जियो तो चल रहा होता है. तो सेल्स करना नहीं होता, सेल्स हो रहा होता है. ओके. क्योंकि सेल्स हो रहा होता है, अगर आप सीख लोगे तो अच्छे से कर पाओगे. ओके. नहीं सीखोगे तो गंदे से करोगे. कर तो रहे हो,
एज स्पेसिफिक नहीं है मतलब. नॉट एट ऑल. आप पैदा होते हो, आपको दूध चाहिए होता है, आपको रोना होता है. द फर्स्ट सेल्स इन लाइफ इज द चाइल्ड क्राइंग फॉर मिल्क. ओके. दैट्स द फर्स्ट सेल्स. माँ और बच्चे का इतना पवित्र रिश्ता है, पर हाँ. बच्चे को सेल करनी पड़ती है ना. बच्चे Correct. को हाथ पैर पटकना पड़ता है, रोना पड़ता है. तब उसको दूध मिलता है. करेक्ट. दैट्स द फर्स्ट सेल हम्म. एंड इट प्रोग्रेसेस. ओके. आप सुबह, आपकी शादी नहीं हुई है, बट जब शादी हो जाएगी, सुबह चाय कौन बनाएगा? हस्बैंड की वाइफ. दैट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द डे. यू डिसाइड दैट. हाँ. राइट. यू हैव टू सेल. दोनों को नींद आ रही है और दोनों को चाय चाहिए, तो कौन बनाएगा? अगर आप बोलते हो मेड बनाएगी, तो मेड जो आई है दरवाजा खोलने कौन जाएगा? कौन जाएगा? दैट्स अ सेल. ओके. राइट. यू जॉइन ए जॉब. मैं क्या करूं, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये करना चाहता. दैट्स अ सेल. ओके. करेक्ट. मैं इसके साथ काम करना चाहता हूं. दैट्स अ सेल. ये मेरा आइडिया है, आप स्वीकार कीजिए. दैट्स अ सेल. बच्चे बोलते हैं मैं पिकनिक में जाऊंगा, ओवरनाइट पिकनिक में माँ बाप को. दैट्स अ सेल. कौन सेल्स नहीं कर रहा, आप मुझे बताइए. सब सेल्स कर रहे हैं. आफ्टर व्हाट आई एवरीवन heard. इज सेलिंग, Right. but very few trained salespeople on earth are only 8% people. Goodness. Only 8% people are trained salespeople. Baki, according to me, 100% of human beings are selling, whether they like it or they don't like it. तो अगर आप उस 8% में आ जाओ, you're on a highway. You are on a highway. अब whether you're a scientist, you're a R&D guy, you're a HR, आप फाइनेंस वाले हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, आप चाहे जो हो, आप डेकॉइट हो, शूटर हो, मर्डरर हो, Hmm. आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आपको सेल्स आना चाहिए. क्योंकि सेल्स सीख लोगे ना, तो जिंदगी जीना सीख लोगे. ओके. तो हमेशा ना हम लोग सेल्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं. बहुत लोग हैं जो अपने काम पे जाते हैं तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स अप्रोच होता है कि अरे सेल्स करना है, मतलब मेरे को पूरा प्रोडक्ट समझना पड़ेगा, मुझे पूरी कंपनी का आ रहा है पूरा पिछला आगे का पूरा समझना पड़ेगा. बहुत कॉम्प्लेक्स समझते हो उसको. लाइक मैं स्टार्ट करना है तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है. अब आपने इतना काम किया, आप एक सेल्स कोच हो, अगर मुझे किसी को एक लाइन में सेल्स समझाना है, कोई न्यू एम्प्लॉई है उसको एक लाइन में सेल्स समझाना है, तो मैं कैसे समझाऊंगी? एंड स्पेसिफिक मुझे 1 लाइन ही चाहिए. लाइक एक लाइन में आप समझा दो. देखिए, सेल्स इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग अ ह्यूमन बीइंग. ओके. पीरियड. बस उसको मैं यही बोलूँ. जी. आप किसी इंसान को डिस्कवर करना सीख लो, आप सेल्स सीख लिए. ओके. एक्चुअली सेल्स तो सीखना नहीं है ना, सेल्स तो है. हो गई. आप उसके टेक्निक सीख लिए, आप समझ लिए उसकी साइंस. ओके. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज साइकोलॉजी. यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोब. किसी इंसान के दिमाग के अंदर कैसे घुसना, समझना, करेक्ट. बाहर निकल के उसके सामने बैठ के उसको बताना कि मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीजें देखी है, क्या मैं सही हूं? अब आपके उसके दिमाग के अंदर बैठ के देखे हो तो सही बोलेगा. डिस्कवर करना पूरे और फिर इंसान. दोस्त बन जाओ और फिर जिंदगी भर दोस्ती निभाओ. यही सेल्स है. ओके. आपने अभी सेल्स को सिंपली बताया कि इफ यू कैन डिस्कवर द ह्यूमन बीइंग, आप एक अच्छे सेल्स कर सकते हैं. नाउ पीपल हु एंटर इनटू सेल्स, उनको कितने साल सेल्स में रहना चाहिए या स्विच करना चाहिए, या कितने, हाउ मच टाइम यू शुड गिव इट टू योरसेल्फ टू फेस दोज रिजेक्शंस, एंड व्हेन दैट पीरियड, कब ऐसे एक टाइम आएगा कि आप एक बहुत अच्छी सेल्समैन बन जाओगे? क्या क्राइटेरिया है सक्सेसफुल सेल्समैन बनने? देखिए, आप अपने काम को करने में आपको मजा आ रहा है. हाँ. और हर रोज आप नए लोगों से मिल रहे हो, और नाम, शोहरत, पैसा आप अपने हिसाब से अनुकूल कमा रहे हो, तो आप टिके रहो. ओके. राइट. ये तो एक प्रोफेशन है. राइट. रह गया सवाल कि कितना समय लगता है अपने काम को समझ लेने के लिए. ये इंटायरली आप पे डिपेंड करता है. अगर मैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट को पूछूं
कि आपको एक एक्सपर्ट बाईपास सर्जन बनने के लिए कितना समय लगेगा, हाँ तो नॉर्मली उसका जवाब होगा कि अगर मैं इंडिपेंडेंटली 100 बाईपास कर लूँ तो मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा। तो आपको किसी चीज को एंजॉय करना आपकी फितरत पे डिपेंड करता है, लेकिन उस एंजॉयमेंट को करते करते उसमें एक्सेल करना इज अ नंबर गेम। तो इज देयर अ आप नंबर कि कितने इतने सेल्स बार, कर लिए तो डन? हाँ, एक नंबर है सलोनी सेल्स में। आप किसी काम को सीखने के लिए उस काम में 19 बार फेल करोगे ओके, तो सीख जाओगे, 19 बार फेल करा तो एक बार सीख जाओगे। यू विल लर्न फर्दर। ओके, ऐसे 19 बार फेल कर करके एक एक चीज सीखते जाओ। कुल मिला के करीबन 30 चीज हैं जो सीखनी है सेल्स में। अराउंड 30 थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न इन सेल्स। ओके, 19 बार फेल हो, 30 चीजें सीख लो, 600 अटेम्प्ट लगेंगे, डन, यस। यू आर देयर। अब ये 600 अटेम्प्ट आपने 6 महीने में लिए या 6 साल में लिए या जिंदगी भर में नहीं लिए, ये आप पे डिपेंड करती है। कि आपने जो भी टाइम का एक बात बताई 6 मंथ्स, नाउ एवरी जेंजी इज देयर लाइक इंस्टेंट। हमारे पास अभी ब्लिंकिट है, 10 मिनट में आपको जो चाहिए आ जाता है। डिलीवरीज बहुत फास्ट हो गई है। इतने कोर्सेज निकल गए कि 2 महीने में आप एआई सीख जाते हो, 2 महीने में आप कोडिंग सीख जाते हो, सब फास्ट हो रहा है, राइट? एंड देयर इज दिस पैरेटोस प्रिंसिपल, आपने भी आप भी सुना होगा कि पहले लोग सोचते थे कि हम 80% एफर्ट में 20% रिजल्ट लाते हैं, अभी लोगों को 20% एफर्ट में 80% रिजल्ट चाहिए। अगर ये करना है तो सब लोग बोलते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजीज अच्छी होनी चाहिए, आप में वो टेक्निक्स होनी चाहिए, जो आपने भी बोला कि सेल्स में भी एक टेक्निक का गेम है। तो ये कौन सी नीतियां, ये कौन सी टेक्निक्स है जो एक सेल्स को आप में बेटर करते हैं? सो व्हाट टेक्निक्स अ सेल्स पर्सन को, ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जो सीखनी चाहिए कि कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट आए? 2 सवाल पूछा हमने। राइट, पहले तो मैं आपकी ये ब्लिंकिट फिनोमेना को बस्ट कर दूं, इंस्टेंट वाला, हाँ। इंस्टेंट, क्योंकि किसी और ने मेहनत करके कोई सामान बनाया है, एज ए कंज्यूमर, एज ए उपभोक्ता आपको इंस्टेंट मिल गया, हाँ, राइट? यहाँ पे आप अपनी कैरियर क्रिएट कर रहे हो, अपनी जिंदगी क्रिएट कर रहे हो। कुछ भी क्रिएशन इंस्टेंट नहीं होता। ओके, एम.एफ. हुसैन ने कोई पेंटिंग इंस्टेंट नहीं बनाई थी, ओके, एंड पर्सी बिशी शेली ने कोई पोयम इंस्टेंट नहीं लिखा था, हाँ, एंड एल्ड्रॉफ हसल ने कोई ऐसे इंस्टेंट नहीं लिखा था। कोई क्रिएशन इंस्टेंट नहीं होती है। आपका कैरियर भी इंस्टेंट नहीं बनेगा, राइट? ये सारे जेंजियों को जाके बता दो। कोई डॉक्टर इंस्टेंटली नहीं बना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टेंटली नहीं बना, और कोई सेल्समैन भी इंस्टेंटली नहीं बनेगा। ओके, और बनेगा तो उस बच्चे की तरह होगा जो 9 महीने के बदले 3 महीने में पैदा हो गया। जो पॉसिबल नहीं है। नहीं, होते हैं कुछ डिफॉर्म्ड बच्चे होते हैं। ओके, तो आपको अगर डिफॉर्म्ड कैरियर में आना है तो आप इंस्टेंट कैरियर में जाओ। जैसा मैंने बताया कि 19 फेलियर्स लगेंगे एक सक्सेस की, और ऐसे 30 सक्सेस लगेंगे, तो 600 अटेम्प्ट्स करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। अब 600 अटेम्प्ट आप 600 दिन में कर लो, 2 साल, करेक्ट, या 600 अटेम्प्ट आप 6 महीने में कर लो, 180 दिन में। तो 200 दिन में अगर 600 करने हैं करेक्ट, तो हर रोज 3 अटेम्प्ट करो। करेक्ट, मुझे लगता है डन हो जाएंगे। कि सेल्स की प्रोफेशन में समझ के आगे बढ़ने के लिए 1.5 से 2 साल का समय वाजिब लगेगा। है, और किसी भी यंगस्टर को ये समय इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से और कोई प्रोफेशन मुझे नहीं दिखती जहां 2 साल इन्वेस्ट करके आप एक्सीलेंस हासिल कर सकते। देखिए, बहुत बड़ी बात है। हाँ, किसी और प्रोफेशन में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की आर्टिकलशिप और पास करते करते आपको 4 साल लग जाते हैं। करेक्ट, जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है उसको 3 साल लगते हैं। करेक्ट, डॉक्टरी में एमडी बनते बनते आप 35 साल के हो जाते हो। ट्रू, इंजीनियर 21 साल में पास होता, लेकिन अच्छे इंजीनियर बनते बनते 30-32 साल के हो जाते। राइट, आप एमबीए करने के बाद आईआईएम से भी एमबीए करते हो, आप हो जाते हो 24-25 साल के। आप सिविल सर्विसेज में पास होते हो 22 साल में, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जाते हो। कहाँ ज्वाइन करते हो आप? एज ए एडीएम। आप कलेक्टर बनते बनते, जहां हम बोलते हैं कि एक लेवल ऑफ एक्सीलेंस आ गई, आपको 15 साल लग जाते हैं।
ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां आप 2 साल में एक्सेलेंस पे बैठोगे। आपने ढंग से सही कोच के अंदर सही ट्रेनिंग ली, सेल्स में आप 12वीं पास हो, आप ग्रेजुएट हो, सिंपल ग्रेजुएट हो, सिंपल। आप 2 साल के अंदर एक एक्सेलेंस के चेयर पे बैठ पाओगे, ओके। बशर्ते कि आपने पूरी मेहनत की और आपने पूरे रेजिलियंस से टिके रहे। राइट। आप रिजेक्शन से हार के भागे नहीं, आपने जिल्लतें सही पॉजिटिव स्पिरिट में। और जो लोग जिल्लत रिजेक्शन से भाग जाते हैं, मैं उन सारे लोगों को पूछना चाहता हूं कि अभी कहाँ हो भाई, और जहां भी हो वहां जिल्लतें नहीं सह रहे हो क्या? जहां भी हो वहां टारगेट्स नहीं मिल रही है क्या? जहां भी हो कुछ हासिल किया जो सेल्स में नहीं कर सकते? आज भी वापस आना चाहते हो तो आ जाओ, क्योंकि आज भी सेल्स तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑलराइट। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो नीतियाँ जो हमने बोला था कि व्हाट आर दोस टेक्निक्स व्हिच यू नीड टू बी गुड एट सेल्स? If I break it down into very small sharp steps, first is you have to get into sales की जात. ओके। So the DNA of sales has to be realigned in you. It's there. Someone has to sharpen it for you. Once you have learned the sales की जात, then you need to learn the sales की विधि. Or I call it sales का process. Sales की विधि. Which starts with suspecting, prospecting, need analysis, objection handling, negotiation, closing. Once you have understood that, then you have to understand sales katha, which is storytelling in sales. How do you talk? How do you keep your customer engaged? Okay. Once you have done that, then you have to understand sales ki niti, sales strategy, which talks about strategy, planning, tactics, psychology, go to market. Once you have done that, you also need to understand sales ke rishte, which is customer relationship management. How do you monetize relationship into business? Okay. Once you have understood these 6 things, you need to understand that more calls is equal to more sales. आपको कॉल करने हैं। आप इंटेलिजेंट हो, अच्छी बात है। आप डफर हो, बुरी बात नहीं है। सेल्स की ये खासियत है, आप डफर हो, बुरी बात नहीं है, अच्छी नहीं है, बट ऐसी बुरी बात भी नहीं है। और आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो ऐसा कोई तोप नहीं हो। सेल्स में रहना है, मोर कॉल्स इज इक्वल टू मोर सेल्स। जो व्यक्ति ज़्यादा कॉल करेगा, ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएगा, ज़्यादा लोगों को अपनी स्टोरी बताएगा, वो ज़्यादा माल बेचेगा। ओके। तो अगर आप इंटेलिजेंट भी हो और ज़्यादा कॉल भी करते हो, 1 नंबर, यू विल गो अहेड। आप औसत बुद्धि के हो, आपकी आईक्यू बहुत हाई नहीं है, लेकिन आप बहुत मेहनत करते हो, एक अच्छा ट्रेनर आपको आपके अंदर वो सेल्स की आईक्यू दे देगा, जिससे आप बहुत तरक्की करोगे। यू नो, आईक्यू एंड ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट एंड इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इज गुड, बट सेल्स में अलग चीज चलती है। सेल्स में चलता पीक्यू। हमने सुना कभी? नहीं। पीक्यू मीन्स प्रॉमिस क्वोशिएंट। ओके। Promises made divided by promises kept. अगर आपका PQ 1 है, आप सेल्स में बहुत तरक्की करोगे। आपका IQ बहुत हाई है, EQ बहुत हाई है, PQ 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? आप बहुत ज्यादा प्रोमिसेस करते हो और बहुत कम प्रोमिसेस फुलफिल करते हो। आप सेल्स के लिए दाग हो, बदनुमा दाग। तो PQ चलती है हमारे यहाँ। आपकी PQ 1 है, आप अच्छे सेल्स बन जाओ। EQ IQ से कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा है, वेलकम है, गुड टू हैव, बट नॉट मस्ट टू हैव। बट PQ इज मस्ट टू हैव, राइट? PQ इज मस्ट टू हैव। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, सेल्स की जात, सेल्स की विधि, सेल्स की नीति, सेल्स कथा, सेल्स के रिश्ते और सेल्स में मोल भाव, विच इज सेल्स नेगोशिएशन। ये 6 चीज, ये 6 टेक्निक सीख लो, सेल्स आ जाएगा। गंगा पार हो जाएंगे। गंगा पार हो गया। ये रामबाण है, ये 6 रामबाण सीख लो। सेल्स भूखे नहीं मरोगे,
और आपके साथ जितने डॉक्टर इंजीनियर पास किए थे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, यही तीन तो होती है हमारे देश में। ट्रू। मैं भी इंजीनियर हूँ, एमबीए भी हूँ, बट मैं आपको छाती ठोक के बोलता हूँ, मेरे साथ जितने डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे, वो सब मुझसे ईर्ष्या करते हैं आज। और उन सब से मैं तरक्की में ज़्यादा हूँ, मैं आगे हूँ। नाम, शोहरत, पैसा मैंने उनसे ज़्यादा कमाया है। क्यों? क्योंकि मैं इंजीनियर बन के रुक नहीं गया। मैं इंजीनियर बन के पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बावजूद एक सुपीरियर सेंस है, एक सुपीरियर स्किल है, एक सुपर ऑर्डिनेट स्किल है सेल्स, मैंने उसको अपनाया। एंड दैट हैज गिवन यू, आपको उसने सब दिया। यस, एक्सेलेंस दी। yes. So with love to all my colleagues who passed off as engineers, doctors, chartered accountants, a big shout out to you. I love you guys, but you know it very well that you didn't do as good as me because you didn't do in sales. Sales can also give you confidence. ये बोलने के लिए guts चाहिए. Coming to very end, we'll have just last two questions. Now things are, modifying. नई नई चीजें आती है, चीजें बदलती रहती है. न्यू टेक्नोलॉजीज, कभी iPhone 14 चल रहा है तो अभी 16 आ गया, 17 आ जाएगा, 18, थिंग्स आर चेंजिंग. हाउ डू यू ब्रिंग दैट न्यूनेस? आप नयापन सेल्स में कैसे लाओगे? आपने प्रोसेस सीख लिया, आपने नीतियां सीख ली, बट ये नयापन कैसे लाते? क्योंकि बहुत लोगों को सेल्स बहुत बोरिंग लगता है. रोज जाओ, वही एक चीज बेचो, वही एक चीज बेचते रहो, बेचते रहो, बेचते रहो. कभी बेचो तो अच्छा, नहीं बेचो तो उसका बुरा मानो. तो नयापन हम कैसे लाएंगे सेल्स में? ओके, आई विल कम टू दैट, बट ये जो आपका क्वेश्चन है कि बहुत बोरिंग है, हाँ, तो कौन से प्रोफेशन में हर रोज वो नई चीज करते हैं? ऐसी कौन सी प्रोफेशन है? एक कार्डियोलॉजिस्ट हर रोज हार्ट ही देखता है, राइट, और खोलने के बाद सारे हार्ट एक जैसे दिखते हैं. डायरेक्ट. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हर रोज बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही देख रहा है. वो है, वो तो है. कौन सी प्रोफेशन है जहां हर रोज वो नई चीजें देखते हैं? इनफैक्ट सेल्स इज द ओनली प्रोफेशन जहां हर रोज वो नए लोगों से मिलते हैं, और कोई प्रोफेशन नहीं है. तो इट्स अ माइंडसेट इशू. ह्यूज माइंडसेट. मैं तो हर प्रोफेशन में रह के आया हूँ. हाँ, मैं इंजीनियर भी था, मैं सेल्स वाला भी था, कंसल्टेंट भी हूँ, कोच भी हूँ. ऐसी कौन सी प्रोफेशन है? आप जब तक अपने प्रोफेशन से शादी नहीं करोगे, देयर इज नो प्रोफेशन विच अलाउज यू फ्लर्टिंग. ओके. Can you flirt with your profession? No. Yeah. And if you flirt, can you call it a profession? No, And no. then there is a casual approach to it. It's not a profession. अगर आप सुबह कुछ करते हो, शाम को कुछ और करते हो, दोपहर को कुछ और करते हो, आप प्रोफेशन नहीं हो. अगर आप ब्रोकर भी हो तो आप ब्रोकरेज ही कर रहे हो हर रोज, राइट? तो आपके जेन से लोग जो प्रोफेशन के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं कि शादी जब तक नहीं करोगे तो प्रोफेशन नहीं है. और फ्लर्ट करना है तो करो भाई, बट प्रोफेशन डजंट अलाउ यू टू फ्लर्ट, राइट? कमिंग टू योर मेन क्वेश्चन, Yeah. क्या मैं सवाल भूल गया आपको, क्या सवाल था? ये कि how to get the newness. हाँ, कैसा तो लगता है? इन द प्रोफेशन ऑफ सेलिंग जिन चीजों के लिए ह्यूमन एलिमेंट की जरूरत नहीं है, वो आप मत कीजिए. जैसे आज से 30 साल 35 साल पहले हम हर लीड कोल्ड कॉलिंग के थ्रू लाते थे. हाँ, आज आपको हर लीड कोल्ड कॉलिंग के थ्रू नहीं लाना. आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो. तमाम, इनफैक्ट आज बिना कोल्ड कॉलिंग किए हुए भी लीड जनरेशन हो जाती है. तो क्यों करना? आप लीड जनरेशन मॉडर्न तरीके से करो, राइट? हमारे शुरुआत में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे, प्लेटफॉर्म नहीं थे, बहुत महंगे थे, अफोर्डेबल नहीं था. आज SaaS मोड पे 500-600 रुपये पर मंथ पे आपको CRM सॉफ्टवेयर मिल जाती. तो डायरी लिखने की जरूरत नहीं है कि किससे मिले, क्या बात हुआ. आप मॉडर्न तरीके से अपनी हर डेली रिपोर्टिंग को आप CRM में करो. आप CRM आपको नोटिफिकेशन देगा कि कब किसको मिलना है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स. यू मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. राइट? ऐसे तमाम तरीके हैं
जिससे कि आप जेनरेटिव एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस से बहुत सारे डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हो, फ्यूचर में देख सकते हो, रिग्रेशन पीछे डेटा से एनालाइज करके करंट में क्या सही होगा ये सीख सकते हो। आपको हर चीज जजमेंट से नहीं करना है। आज का सेल्स बहुत डेटा ड्रिवन हो गया, अच्छा, राइट? ओके, आप डेटा को एनालाइज करो, बहुत सारे टूल्स हैं, आपको कोई स्टैटिस्टिक्स या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, टूल्स अवेलेबल हैं, आप एनालाइज करो, डेटा बेस्ड मॉडलिंग करो, फिर अपना सेल्स करो, राइट? तो नयापन तो आते रहता है और हर नया इजाद हर प्रोफेशन में एप्लीकेबल है। आपको अपग्रेड होते रहना है। ऐसे कितने डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो लेजर गन यूज करना नहीं जानते। ऐसे कितने सर्जन्स को मैं जानता हूं जो जनरल सर्जन्स हैं, अपने जमाने के मशहूर, आज की लेजर सर्जरी वो नहीं कर पाते क्योंकि लेजर गन आया 10 साल पहले, तो जो सर्जन बने 10 साल पहले उन्होंने किया। बट ऐसे बहुत सारे बूढ़े सर्जन भी हैं जो लेजर में एक्सपर्ट है। तो अपग्रेड करना तो फितरत है। ओके, सिमिलरली इन सेल्स आपको खुद को अपग्रेड करता रहना है। मैं 60 साल का उम्र का हूं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल मैं सेल्स में नहीं करता हूं। ओके, और अगर आपकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति आता है, मुझे कुछ सिखाता है नया, मैं बिल्कुल सीखता हूँ। एक्सेप्टिंग रहना है, Yes. अपग्रेड करना है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड देयर इज लाइक नो एज बार, आपको सीखते रहो, यू लर्न एंड आप यू विल गेट बेटर एट इट। दिस इज सिंपलेस्ट लॉजिक। नाउ एक फाइनल मैसेज क्या है, बिकॉज हमने हमेशा देखा है, इवन नागपुर में हम जहाँ बैठे हैं हमने देखा है, बोला जाता है कि यूथ के पास एक कॉज नहीं है। बहुत यूथ का माइंडसेट्स बहुत बिखरा हुआ है। पीपल हु आर कमिंग इनटू प्रोफेशन, लोग की पढ़ाई अप्रोप्रिएट नहीं है। आजकल कॉलेजेस को हम ब्लेम करते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई और इंडस्ट्री की पढ़ाई में बहुत बड़ी गैप है। इन ऑल ऑफ दिस सिचुएशन वेयर थिंग्स कम्पिटिटिव है, इंस्टेंट है, गैप है, इन द सेल्स सिनेरियो व्हाट इज द नेक्स्ट रेवोल्यूशन? क्या होना चाहिए जिससे सेल्स बेटर हो? एंड आपका अपकमिंग सेल्स पीपल के लिए क्या एक फाइनल मैसेज है? देखिए, पहले बात तो फाइनल कुछ भी नहीं होता, और सेल्स पीपल कोई नहीं है, सेल्स इज अ वे ऑफ लाइफ। ओके, मेरा मैसेज ये है कि आप यंगस्टर हो, आप अपनी कैरियर बनाना चाहते हो, कैरियर की तलाश करना चाहते हो, वास्तविक दुनिया से मत झूठ मत बोलिए। आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ। ओके, आज के डेट में आउट ऑफ 100 जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट, 100 जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट, 90 जॉब्स आर इन सेल्स, गुडनेस, एज हाई एज दैट। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप बैंक की नौकरी पे ज्वाइन करते हो, आप बैंक में जाके फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, राइट। आप किसी फैक्ट्री में ज्वाइन करते हो एज ए इंजीनियर, आप कोई ना कोई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बेच रहे होते हो। तो ऐसा बताया गया है, टू बी प्रिसाइज 89% ऑफ द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट टुडे आर इन सेल्स। ओके, नाउ सिंपल लॉ ऑफ एवरेजेस से अगर 89% जॉब सेल्स की है तो आपको एक फेयर कंसिडरेशन तो देना ही चाहिए, राइट, कि आप भी सेल्स का कैरियर बना सकते हो कि नहीं। हाँ, डू यू एग्री? यस। अब सेकंड स्टेप है कि आप सोचते हो कि यार एक बार चेक कर लेता हूं कि अगर 89% जॉब सेल्स है तो मैं सेल्स वाला हूं कि नहीं। बिल्कुल, आइए, मेहनत कीजिए, रगड़ा खाइए, रैगिंग खाइए, रिजेक्शन सहिए, जिल्लतें सहिए, क्योंकि यहाँ नहीं सहोगे, कहीं ना कहीं सहना पड़ेगा। जिस प्रोफेशन में जाओगे सहना, और होशो आवाज में डिसाइड करो, डू यू डिजर्व टू बी इन सेल्स। डोंट आस्क कि whether sales deserves you or not. Ask yourself, do you deserve to be in sales? क्योंकि सेल्स एक बहुत बड़ी चीज है, हर व्यक्ति के भाग्य में सेल्स नहीं है। ये सिर्फ उस 8% सक्सेसफुल लोगों के भाग्य में है जो इस दुनिया का नाम, शोहरत, पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं। ओके, आप उस 8% क्लब में हो कि नहीं, ट्राई करो, हो सकता है आपकी किस्मत आपको साथ दे दे।
Right. हो सकता है आप उसमें आ जाओ, Uh-huh. और नहीं आते हो, बैड लक फॉर यू. आई फील बैड फॉर यू. आई फील बैड फॉर ऑल दोज हु डोंट मेक इट इन सेल्स, बट दोज must give it a consideration. A, because 89% of jobs are in sales. And B, अगर आपके दिल में फितूर है, आजकल बहुत फितूर चल रही है, स्टार्टअप, खुद का बिजनेस, आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, राइट? तो अगर ऐसी कोई फितूर है कि आगे चल के करना है, Mm-hmm. तो फिर तो कोई उपाय नहीं है. बिकॉज आप एलॉन मस्क की कोटेशन पढ़ लो, आप बिल गेट्स को सुन लो, जैकी मा को सुन लो, ये सब आज के रोल मॉडल्स हैं. हाँ. आप पुराने रोल मॉडल्स को सुन लो, आप किसी को भी सुन लो. हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन का कहना है कि सेल्स इज ए इंडिस्पेंसेबल स्किल फॉर एन एंटरप्रेन्योर. इंडिस्पेंसेबल, नॉन नेगोशिएबल. Correct. तो यार अगर नौकरी करनी है तो 89% चांस है सेल्स में Sales नौकरी में करनी जाओ. है. धंधा करना है तो 100% सेल्स इंडिस्पेंसेबल है. Right. तो आप हल्के में तो नहीं ले सकते. तो माय मैसेज टू ऑल योर फॉलोअर्स इज डोंट टेक सेल्स हल्के में. आस्क योरसेल्फ वेदर यू डिजर्व टू बी इन सेल्स, बिकॉज सेल्स प्रोफेशन इज नॉट डाइंग फॉर यू. You should be dying for this profession, because what this profession will give you, you will only know when you get it. Amazing. So thank you so much, Sanjay sir, for explaining us कि सेल्स क्या है, आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, आपने नंबर्स, थैंक यू फॉर गिविंग अस स्टैटिस्टिक्स की रियलिटी. बहुत लोगों को लगता है कि जॉब्स कायम ढूंढ रहे हैं, 89% ऑफ जॉब्स इवन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स. आपने बताया कि इट्स नॉन नेगोशिएबल, आपको सेल्स आना ही चाहिए. आपने नीतियाँ बताई, आपने स्ट्रैटेजीज बताई, आपने रिजेक्शन हैंडलिंग बताया, आपने कॉन्वर्जेशन बिल्डिंग बताया. थैंक यू सो मच. एंड होपफुली हमारे फॉलोअर्स को ये समझा होगा, एंड होपफुली हम आगे और मिलेंगे एंड और सेल्स के बारे में जानेंगे. एंड लेट्स सी दैट आपने एक एचआर को एक थोड़ा कन्वर्ट किया है सेल्स में आने के लिए, तो बहुत सारे यंगस्टर्स एंड जेन जी माइट स्टार्ट थिंकिंग career in sales as a big thing. Thank you so much. Great. I mean, I would like to tell my last statement कि सेल्स सीख लोगे तो जीना सीख लोगे. Way of life. Thank you.